Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to cover these services of exemptions. Okay, ये हम exemption के sectors cover करने वाले हैं ये lecture में. That are legal services, insurance business services, IIM programs, artistic services, admission to various events, services by RWA, that is Resident Welfare Associations and trade unions. Clear है? ये जो coverage है ये हम इस lecture में करने वाले हैं. That is exemptions part number 3. वीडियो का नाम है exemptions part number 3. Clear? So let us begin our discussion first. First service which we are going to see is legal services. क्या हम चेक करने वाले हैं? Legal services. Okay. Legal services provided by arbitral tribunal or partnership firm of advocates or individual advocate, that is other than senior advocates. ठीक है, यहाँ पर senior advocate को include नहीं किया. Then senior advocate also यहाँ पर अलग से included है. Clear है? Arbitral tribunal, partnership firm of advocates और individual advocate और senior advocate. अगर इनमें से कोई भी पर्सन इन तीनों में से किसी को भी सर्विस देता है, then those services will be exempt from GST. Clear? Once again repeating, arbitral tribunal, partnership firm of advocates or individual advocate or senior advocate giving services to these three people will be exempt from GST. ठीक है, कौन तीन वो लोग हैं आइए चेक करते हैं. First one, any person other than business entity. Okay, if you are an individual, you are availing legal services for your family dispute. ठीक है, आप अपने family dispute के लिए legal services avail कर रहे हो, then in that case that service that is provided by lawyer to you is exempt from GST. I hope this is clear. Okay, next one, a business entity with an aggregate turnover up to such an amount in preceding financial year as makes it eligible for exemption from registration in current financial year. ठीक है, let me explain you this point with proper example. Okay, now before amendment क्या सिनेरियो था, आफ्टर अमेंडमेंट क्या सिनेरियो है, ये हम यहाँ पर चेक करते हैं. देयर इज सम रीजन व्हाई आई एम डिस्कसिंग बिफोर एंड आफ्टर अमेंडमेंट. बिफोर अमेंडमेंट के सिनेरियो में जिन पर्सन का टर्नओवर 20 लाख से, जिन बिजनेस एंटिटीज का टर्नओवर 20 लाख से और 10 लाख से ज्यादा था, ठीक है, उनके लिए ये एग्जेम्पशन नहीं था. ध्यान देना, वापस से एक बार बोल रहा हूँ. Legal services received by such business entities whose turnover in preceding financial year was more than rupees 20 lakhs or rupees 10 lakhs in special category states, ठीक है, for them these services were taxable. ठीक है, so ये exemption नहीं था, no exemption for these people. No exemption मतलब ये सर्विसेज क्या होंगी, टैक्सेबल होंगी. जब ये सर्विसेज टैक्सेबल होती है तो हम क्या चेक करते हैं, चार्ज ऑफ जीएसटी. एज पर आरसीएम नोटिफिकेशन 13/2017, these services are taxable under reverse charge mechanism. क्लियर है ये बात? ठीक है, सो जो बिजनेस एंटिटीज 20 लाख से ऊपर का आउटवर्ड सप्लाई का टर्नओवर रखते हैं, करते हैं, 10 लाख से ऊपर करते हैं इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, उन लोगों को लीगल सर्विस के लेने पर उनको जीएसटी आरसीएम में पेमेंट करना पड़ता था. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब एक बात बताओ मुझे, आरसीएम में अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था. समझ में आ रही है बात? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वॉज देयर, अभी भी है, वॉज नहीं, इज देयर. ठीक है, सेक्शन 24 के हिसाब से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. अब गवर्नमेंट ने ये जो पॉइंट है यहाँ पर मिस्टेक करी है. ठीक है, मिस्टेक करी थी, उसको रेक्टिफाई कर दिया अभी आफ्टर अमेंडमेंट सिनेरियो में. मिस्टेक क्या लग रही है आपको, बताओ, कम ऑन थिंक. गवर्नमेंट को पहले ये लगता था कि जिनका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है या 10 लाख से ऊपर है वो लोग रजिस्टर्ड ही होंगे. दे वर अज्यूमिंग देम टू बी रजिस्टर्ड, दे वर अज्यूम्ड टू बी रजिस्टर्ड, अज्यूम्ड टू बी रजिस्टर्ड. ठीक है, क्या ऐसा है? 99% केसेस में हो सकता है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि 20 लाख का लिमिट तो है ही, 10 लाख का लिमिट है बस. ऐसा तो है 10 लाख का, 20 लाख का लिमिट, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर एक लिमिट भूल चुकी थी, जो है 40 लैक्स की टर्नओवर की लिमिट. कौन सी लिमिट? 40 लैक्स की टर्नओवर की. व्हाट इज 40 लाख टर्नओवर लिमिट? कम ऑन. इफ यू आर एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स, इन फ्यू स्टेट्स को उन्होंने एक्सेम्पशन में रखा है, साइड पे रखा है, and there are some conditions to be fulfilled for this exemption. अगर आप exclusively supplier of goods हो,
एंड आपका इंट्रा स्टेट टर्नओवर है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट है, एंड योर टर्नओवर इज लेस देन रुपीज 40 lakhs, लेस देन और इक्वल टू रुपीज 40 lakhs, देन यू आर नॉट लायबल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। समझ में आ रहा है? ये वाला एक पॉइंट है, अभी भी है, ठीक है। बट गवर्नमेंट से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक बोलो या फिर इस पॉइंट को कंसिडर नहीं किया था, ऐसा समझो इसको। ओके, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अगर मेरा टर्नओवर अगर मेरा टर्नओवर रुपीज 30 lakhs है, ध्यान देना रुपीज 30 lakhs है, ठीक है, एंड आई एम एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स, आई एम एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स, my turnover is rupees 30 lakhs. So am I liable to obtain registration? Answer is no as per notification number 10/2019. Clear है? इसके हिसाब से तो मेरे को नहीं करना है। बट अगर मैं ये सर्विस देखूँ, अगर मैं लीगल सर्विस लेता हूँ एंड मेरा टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, दैट इज यहाँ पर है 30 lakhs, ओके, सो इन दिस केस आई डोंट हैव एग्जेम्पशन, ठीक है। मेरा एंटिटी का टर्नओवर कितना है? 30 lakhs, दैट इज मोर देन रुपीज 20 lakhs, so this exemption was not for me. Since exemption is not for me, this service will become taxable, and ये taxable है तो मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। ध्यान ध्यान में आ रहा है चीजें? मेरे को इस लीगल सर्विस पे टैक्स पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है। नॉर्मली नहीं लेना था मेरे को, 40 lakhs तक नहीं लेना था मुझे, पर आरसीएम में टैक्स पेमेंट करने के लिए मुझे लेना पड़ा रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस सिचुएशन का ध्यान रखने के लिए, ध्यान देना, इस सिचुएशन का ध्यान रखने के लिए अमेंडमेंट लाई गई थी, ठीक है। अमेंडमेंट के बाद वर्डिंग्स कुछ इस तरीके से हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हो, a business entity with an aggregate turnover up to such an amount in preceding financial year as makes it eligible for exemption in current financial year, ठीक है। यहाँ पर ना करंट फाइनेंशियल ईयर वर्ड यूज नहीं किया, बट इट हैज टू बी रेड लाइक दिस ओनली, ठीक है। अब आफ्टर अमेंडमेंट ये जो सिनारियो है, रुपीज 30 lakhs का मेरा टर्नओवर है, ठीक है, बताओ क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ? आंसर इज नहीं, आई एम नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, नॉट रजिस्टर्ड। वाई? because I am exclusively supplier of goods, exclusive supplier of goods up to 40 lakhs I have limit, okay, so मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। एंड मैंने इस केस में लीगल सर्विसेज ले ली, ध्यान देना, लीगल सर्विसेज मैंने यहाँ पर अवेल की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पर फंस जाता था, कैसे? 20 लाख से ऊपर है, पर आफ्टर अमेंडमेंट दिस इज कंसिडर्ड, ओके। इस केस में मुझे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरसीएम का मेरे को एप्लीकेबिलिटी आएगा ही नहीं। कब आएगा आरसीएम का एप्लीकेबिलिटी? जब ट्रांजैक्शन टैक्सेबल होगा। गवर्नमेंट ने इस ट्रांजैक्शन को ही एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है, क्या बोल के, कि ऐसी एंटिटीज जिनका टर्नओवर कुछ थ्रेशोल्ड से कम है, जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, वो लोग सिर्फ लीगल सर्विस का टैक्स पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रेशन मत लो। क्लियर है? ये गवर्नमेंट का इंटेंशन था। वापस से एक बार, इंटेंशन, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंटेंशन था? अगर आपको नॉर्मली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की लायबिलिटी नहीं आती है, नॉर्मली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की नौबत नहीं आती है, तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के टैक्स पेमेंट करने के लिए आप रजिस्ट्रेशन मत लो, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने एक अच्छे से खुद से एक ऑप्शन दिया है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, एक दूसरा सिनेरियो लेता हूँ। मेरा टर्नओवर रुपीज 30 lakhs है, मैं एक्सक्लूसिवली सप्लायर ऑफ गुड्स ही हूँ, ठीक है, ठीक है। पर इस टाइम मैं रजिस्टर्ड हूँ, ध्यान देना, पर इस टाइम मैं क्या हूँ? रजिस्टर्ड हूँ। तो बोलो अभी क्या हमें इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट, इस अमेंडमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं मिलना चाहिए। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था वो समझो आप लोग। गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? अगर आपको आरसीएम के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ रहा है तो मत लो, इट्स ओके okay. अगर आपका आउटवर्ड 40 लाख से कम है एंड आपको वैसे ही रजिस्ट्रेशन नहीं लेना था, तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के लिए रजिस्ट्रेशन मत लो। बट जबकि आप खुद होकर रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, तो गवर्नमेंट विल आस्क फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर आरसीएम। समझ में आ रही बात? दिस इज लायबल टू टैक्स। क्लियर है? आप यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि सिंस योर टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज लेस देन सम थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है, व्हिच मेक्स यू एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। अब एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन कौन से ईयर का देखना है? प्रीसीडिंग ईयर की करंट ईयर? आंसर इज ऑब्वियसली करंट ईयर। अगर आप करंट ईयर में रजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट टैक्स मांगेगा। अगर आप करंट ईयर में रजिस्टर्ड नहीं हो, ड्यू टू योर
एग्रीगेट टर्नओवर बीइंग लेस देन सच अमाउंट ऑफ थ्रेशोल्ड देन यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्स। क्लियर हुई बात? ठीक है, यहाँ पर आईसीआई का एक व्यू था जो नवंबर 20 पेपर में, नवंबर 20 पेपर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक जन का था लेस देन थ्रेशोल्ड। ठीक है, लेस देन थ्रेशोल्ड था, बट करंट ईयर में ही इज रजिस्टर्ड। ठीक है, इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ही वाज he he di- he didn't took registration बाय बिकॉज उसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से कम था। ठीक है, बट करंट ईयर में उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है एंड जो लीगल सर्विसेज है वो उसने करंट ईयर में अवेल की। ठीक है, तो इन दिस केस यू कैन नॉट टेक दिस स्टैंड कि प्रीसीडिंग ईयर में वो एग्जाम था तो करंट ईयर में टैक्स पे नहीं करेगा। नो, दिस इज नॉट द इंटेंशन ऑफ द अमेंडमेंट। ओके, सो आईसीआई के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, बट इन माई व्यू टैक्स शैल बी पेएबल। वाई? बिकॉज इन करंट ईयर यू आर नॉट एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ड्यू टू योर प्रीसीडिंग ईयर टर्नओवर। ठीक है, अगर प्रीसीडिंग ईयर के टर्नओवर के बेसिस पे अगर आप करंट ईयर में एग्जामेशन हासिल करते हो, एग्जाम्प्ट होते हो रजिस्ट्रेशन से, देन आप वो एग्जामेशन को क्लेम करो। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द इंटेंशन ऑफ द लॉ बिहाइंड दिस अमेंडमेंट। ओके, ये जो केस है ना 30 लाख वाला, इस केस के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है ना, सबके लिए ये अमेंडमेंट इतना यूजफुल नहीं है। ठीक है, जो पर्सन रजिस्टर्ड है उनको जीएसटी पे करना है, जो पर्सन एग्जाम्प्ट है बिकॉज ऑफ देयर टर्नओवर बीइंग लेस देन थ्रेशोल्ड लिमिट, उनको सिर्फ और सिर्फ आरसीएम पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई थॉट्स टू यू। क्लियर? अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा। नाउ लेट अस गो अहेड। Very huge discussion on the second point, not an issue. Third one, central government, state government, union territory, local authority, governmental authority और government company. Clear? अगर इन तीनों, अगर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कंपनी या तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इन लोगों को सर्विस देते हैं, देन दैट सर्विस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर है? इस पे ना ही लॉयर टैक्स पे करेगा, ना ही रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, if partnership form of advocates including a single, that is individual advocate, providing legal services to these advocates itself, ठीक है, इन लोग को ही सर्विस दिया जा रहा है, ठीक है, देन इट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अदर देन सीनियर एडवोकेट है। ठीक है, मीन्स सीनियर एडवोकेट अगर इन लोगों को सर्विस देता है देन इट इज नॉट कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन। ओके, इफ सीनियर एडवोकेट इज गिविंग सर्विसेज टू पार्टनरशिप फॉर्म of advocates or individual advocates, ठीक है, then it is not covered under exemption. It means it is taxable. समझ में आ रही है बात? तो if senior advocate is providing services, that is legal services, to partnership form of advocates or an individual advocate, that is taxable under reverse charge mechanism. Clear? अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स होने के लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 13 से ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? अब नोटिफिकेशन नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखोगे तो वहां पर रिसिपिएंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ लीगल सर्विस का डेफिनेशन दिया हुआ है। एज पर दोज डेफिनेशंस, recipient means the person who is litigant, the person who is litigant और who is petitioner। ठीक है, जिस क्लाइंट के लिए हम केस लड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिसिपिएंट। क्लियर है? सो जो ये सर्विस होती है सीनियर एडवोकेट टू पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स क्लाइंट, इन दैट केस जो सीनियर एडवोकेट का बिल होगा जो पार्टनरशिप फॉर्म को आएगा, एंड जो पार्टनरशिप फॉर्म वही चार्जेस रिकवर करेगा अपने रिसिपिएंट से, तो रिसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन दोस सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ओके, डन। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ओके, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, services of life insurance provided by way of annuity under National Pension Scheme regulated by Pension Fund Regulatory Development Authority under this particular act is exempt। ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम, दैट इज नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आप कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का कवर लेते हो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। लाइफ इंश्योरेंस टू मेंबर्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ग्रुप इंश्योरेंस। ठीक है, अगर आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो, ठीक है, एंड आप लोग इंश्योरेंस करवाते हो उनका, ठीक है, इन दैट केस दैट
प्रीमियम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, जीएसटी ऊपर नहीं लगेगा. With effect from 1st October, services of life insurance provided or agreed to be provided by Central Armed Police Forces, Central Armed Police Forces group insurance funds to their members under group insurance fund is also exempt. Okay. Postal guards, naval group insurance funds are also exempt. Okay. Services, that is life insurance services under various schemes. Okay. अब ना ये जो स्कीम्स है मोस्टली इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की योजनाएं हैं. ठीक है. जिधर भी आपको योजना वर्ड दिखेगा ना, योजना वर्ड, बीमा वर्ड, ठीक है, दैट ऑल विल बी एग्जेम्प्ट. आपको आग बंद करके बोलना इट इज एग्जेम्प्ट. प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एग्जेम्प्ट, जनश्री बीमा योजना एग्जेम्प्ट. ठीक है, ये सारी एग्जेम्प्ट है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पार्ट नंबर बी, लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट. लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट approved by IRDA, Insurance Regulatory Development Authority, having maximum cover of 2 lakhs. अगर मैक्सिमम कवर 2 lakhs तक है, 2 lakhs तक है तो एग्जेम्प्ट है. 2 lakhs से ऊपर का कवर है देन इट विल बी टैक्सेबल. क्लियर. जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, इसमें ना काफी बड़ी लिस्ट है. ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव कवर्ड. हट और कैटल इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट, इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल्स एग्जेम्प्ट, पीएम फसल बीमा योजना एग्जेम्प्ट, पीएम सुरक्षा बीमा योजना एग्जेम्प्ट, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम एग्जेम्प्ट. ओके. फ्रॉम 1st October बंगला शस्य बीमा इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. क्लियर है. और इन सब इंश्योरेंसेस का री इंश्योरेंस विल ऑल्सो बी एग्जेम्प्ट. क्लियर. री इंश्योरेंस मतलब कि दूसरे किसी और से आपने इंश्योरेंस करवा के लिए, अपना रिस्क कम करने के लिए, दैट री इंश्योरेंस बिजनेस इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट. लीजिंग सर्विसेज. नाउ दिस लीजिंग इज लॉन्ग टर्म लीज. ओके, एलटीएल बोलते हैं अपन इसको, लॉन्ग टर्म लीज. अभी लॉन्ग टर्म लीज में एक अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है, उसको हम सलामी प्रीमियम ऐसे नाम से जानते हैं. ठीक है. That amounts are exempt if they are provided, if this long term lease is provided by state government industrial development. For example, if it is Maharashtra, then it is MIDC. If it is Gujarat, it is GIDC. Okay. So state government industrial development or entity, that is state government entity having ownership of more than 20% of CG और SG. क्लियर है. अभी ये जो लॉन्ग टर्म लीज है ये देना कौन चाहिए? SG इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सच एन एंटिटी, or such an entity having 20% or more than stake of CGSGUT. Clear? If it is given by MIDC, GIDC, ऐसे लोग or such an entity who has ownership of more than 20% of CGSGUT, then it will be exempt, provided to industrial units or developers in any industrial or financial business. Clear? तो लॉन्ग टर्म लीज कब एग्जेम्प्ट होगा? जब वो लॉन्ग टर्म लीज पर कौन दे रहा है? स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सच एन एंटिटी जिसका शेयर, जिसके अंदर शेयर 20% से ज्यादा किसका है? CGSGUT का. ओके. और ये लॉन्ग टर्म लीज किसको देना है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स को या तो फिर डेवलपर्स को. क्लियर. नेक्स्ट वन, एग्जेम्पशंस ऑन प्रोग्राम्स कंडक्टेड बाय IIM. ठीक है. जो IIM है उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑल लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन प्रोग्राम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST. Short term program, that is short term duration programs, are not exempt, that is taxable. What is the meaning of long term? Long term means such programs which are carried out for more than 1 year. 1 year या उससे ज्यादा के लिए अगर वो प्रोग्राम्स करने हैं, that is डिग्री का जो कोर्स है, that is more than 1 year, then it is exempt. If it is less than 1 year, then it is taxable. Clear? It's called as short term duration programs. Next is artistic services. Artistic services, services provided by artist by way of performance in folk or classical form. Classical form, just a second. Classical form of music, dance, theatre performance, if consideration of such performance is up to rupees 1 lakh. Clear? Folk, classical, that is भरतनाट्यम जैसे, फिर और कुछ डांस फॉर्म्स होते हैं जो फोक और क्लासिकल के आर्ट में होते हैं. ठीक है. अगर क्वेश्चन में आपको आता है वेस्टर्न म्यूजिक, then it will be taxable irrespective whether the charges by such artist is less than rupees 1,50,000 or not. ठीक है. अगर फोक डांस है, क्लासिकल आर्ट है, ऑफ फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, थिएटर परफॉर्मेंस, इन दैट केस अगर 1.5 लाख रुपए से कम तक का है, अप टू रुपीज 1,50,000, then it is exempt. If it is more than 1,50,000, then it is fully taxable. Clear है. One important point, this 1,50,000 का एग्जेम्पशन लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ब्रांड एम्बेसडर. ठीक है. ब्रांड एम्बेसडर को अगर 1 रुपया भी मिलता है ना, उस पर टैक्स भरना पड़ेगा.
क्लियर? ब्रांड एम्बेसडर के लिए कोई भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, समझ में आ रही है बात? इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड बाय ब्रांड एम्बेसडर इट इज टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, so 1,50,000 rupees exemption limit is only for the performer, okay, artist, इनके लिए, ब्रांड एम्बेसडर के लिए कुछ भी एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। नेक्स्ट वन, एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू, यहाँ पर एंट्री फीस जो होती है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर? सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और सो डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट, एंशियंट मॉन्यूमेंट के अगर आप विजिट कर रहे हो, आप वहां पर जाके दर्शन कर रहे हो उसके मॉन्यूमेंट जो भी है, दर्शन इन द सेंस कि एक विजिट हो गई, ओके, नॉट लाइक एक्चुअल गॉड का दर्शन, बट इट इज लाइक अ विजिट टू अ सच प्लेस वेयर दे आर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर? सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन टू, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी हम एंट्री फीस की बात कर रहे हैं। क्लियर? वन में भी हमने एंट्री फीस की बात की, बट ओनली वी वर रेस्ट्रिक्टेड अप टू म्यूजियम, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर और जू पार्क। यहाँ पर क्या है, ध्यान देना। नाउ हियर एडमिशन फी, if it is less than or equal to rupees 500 per person, then it is exempt, ठीक है? If it is more than 500 per person, then it is taxable। okay, क्या है वो, ध्यान देना। सर्कस, डांस, theatrical performance including drama or ballet, award function, concert, pageant, musical performance, sporting event other than recognized sporting event, ठीक है, रिकॉग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट एंड प्लेनेटेरियम, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इन सब जगहों पर विजिट करते हो एंड आपका एंट्री फीस इज लेस देन रुपीज 500, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। क्लियर हुई बात? ओके, इन सिंपल वर्ड्स, अगर 500 के ऊपर है तो टैक्सेबल, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट वन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ठीक है, लायंस क्लब, रोटरी क्लब। Now, what are these associations? ये लोग क्या करते हैं? These associations take share from their own members, okay, and they donate something, ठीक है, ये लोग डोनेट करते हैं, स्लम एरिया में जाके वो लोग फूड सप्लाई करते हैं, हॉस्पिटल्स में डोनेशन करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं? दे टेक दे टेक अमाउंट्स फ्रॉम देयर ओन मेंबर्स, ओके, वो कलेक्ट करते हैं एंड देन डोनेट करते हैं। सो इन दिस केस देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय लॉयंस क्लब टू इट्स मेंबर्स, so it is exempt from GST। I hope this is clear. There are many AARs on this, okay, AAR is not in our syllabus, ओके, AAR वैसे भी एप्लीकेबल किसको होता है? उसी उसी पर्सन को होता है जो उसने लिया है, दैट इज एप्लीकेंट। ओके, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और एनपीओ registered under any law for timing in force provided to own members by way of reimbursement of charges or share of contribution is exempt if it is as a trade union, okay, for the provision of carrying out an activity which is exempt from levy of GST। अगर कोई entity, that is NP entity, non profit entity, okay, it is doing such an activity which is exempt from GST, ठीक है, and for conducting those activities, that entity, that is non-profit organization entity, is taking shares, okay, taking amount from its own members or reimbursing such charges, then it is exempt from GST, okay. Now, important point, C point is very important. Residential welfare associations, residential welfare associations, okay, that is cooperative housing societies and such other। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में होता क्या है? मेंटेनेंस चार्जेस आपसे कलेक्ट किए जाते हैं, क्या कलेक्ट किए जाते हैं? मेंटेनेंस चार्जेस, ओके। सो मेंटेनेंस चार्जेस क्या वो एग्जेम्प्ट रहेंगे या क्या टैक्सेबल रहेंगे? ठीक है, सो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सबसे पहले जब भी जीएसटी आया था तब 5,000 का लिमिट था, ठीक है, बट दैट 5,000 वाज इंक्रीज्ड टू 7,500 रुपीज। क्लियर? अब इसमें हमको किस तरीके से उसका टैक्सेबिलिटी को गवर्न करना है ये समझते हैं। क्लियर? if annual turnover of that resident welfare association is more than 20 lakhs, is more than 20 lakhs, ध्यान देना, 20 लाख से ज्यादा है। क्लियर? ओके, एंड चार्जेस पर मेंबर फॉर रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इज मोर देन 7,500, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिविंग इन सर्टन सोसाइटी जहाँ पर मेंटेनेंस मेरा 8,000 रुपये है, ठीक है, एंड टोटल जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दैट इज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी,
उसका टोटल टर्नओवर दैट इज एवरी सबका मिला करके 20 लाख से ऊपर कलेक्शन हो रहा है उसका, ठीक है, देन इट इज लायबल टू जीएसटी। वाई? बिकॉज मेरा 7,500 से ऊपर है, ठीक है, एंड टोटल टर्नओवर दैट इज टोटल टर्नओवर ऑफ माय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज मोर देन ₹20 lakhs, देन इट इज टैक्सेबल, ठीक है। मेरे से जो रिकवर किया गया है इट इज फुल्ली टैक्सेबल, नॉट जस्ट ₹5,000, सॉरी नॉट जस्ट ₹500। 8,000 मैंने बोला था आपको मेरा मेंटेनेंस है, okay, since my maintenance is more than 7,500 and annual turnover of my society is more than rupees 20 lakhs, it is fully taxable, entire amount is taxable, okay. However, if there are certain people, if there are certain people whose maintenance charges are less than rupees 7,500, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि सबका मेंटेनेंस सेम होता है, कुछ लोगों का मेंटेनेंस कम भी होता रहेगा, ठीक है। सो इफ सम पर्सन्स मेंटेनेंस इज लेस देन ₹7,500 उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, जिनका मेंटेनेंस 7,500 से ज्यादा है उनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्लियर है। नेक्स्ट केस, अब केस 2, केस 3, केस 4, इन तीनों केसेस में ना कुछ सिमिलरिटीज है, ध्यान देना, इन तीनों केसेस में ना कुछ सिमिलरिटीज है। इन तीनों केसेस में जो दो पैरामीटर्स है अपने, कौन से दो पैरामीटर, एनुअल टर्नओवर एंड चार्जेस पर मंथ पर मेंबर, इन दोनों में से एक जन उसके लिमिट से कम है। वापस से एक बार, इन दोनों में से दैट इज 20 lakhs या तो 7,500, एक बार ना चार्ट पे आ जाओ, व्हाइट बोर्ड पे, केस 2, केस 3 एंड केस 4, ठीक है। नाउ इन दिस केस turnover is less than 20 lakhs, per member is more than 7,500, okay, then it is exempt। क्यों exempt? क्योंकि पूरे साल का मेरा टर्नओवर ही 20 लाख से कम है, तो 7,000 से ज्यादा भी अगर आप कलेक्ट करते हो तो इट इज एग्जेम्प्ट, क्लियर। इफ इट इज लेस देन, इफ इट इज सॉरी, थर्ड थर्ड केस, if your annual turnover is more than rupees 20 lakhs but it is less than equal to rupees 7,500, then also it is exempt। why exempt? Because per member per month maintenance charges are less than the specific amount, clear। तो अगर आपका 20 लाख से टोटल ऊपर भी जा रहा है, लेकिन अगर पर मेंबर पर मंथ चार्जेस 7,500 से कम है या 7,500 तक है, देन इट इज एग्जेम्प्ट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, ओके। एंड फोर्थ केस, 20 लाख से भी कम है एंड 7,500 से भी कम है, सॉरी 7,500 रुपीज से भी कम है, सो इन दिस केस इट इज ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट। क्लियर हो चुकी बात। अब आपको याद कैसे रखना है, अगर दोनों दोनों ही ज्यादा है, दैट इज टर्नओवर भी 20 लाख से ज्यादा है एंड मेंटेनेंस चार्जेस भी 7,500 से ज्यादा है, तो ही टैक्सेबल, अदरवाइज एग्जेम्प्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है, क्लियर है बात, ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईटीसी ऑन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, जो भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो सोसाइटीज है, वो लोग कुछ भी परचेज करते हैं, दैट इज सर्विस हो चाहे गुड्स हो, फॉर इट्स ओन मेंबर्स, ठीक है। सोसाइटी मेंबर्स आर देयर ओन मेंबर्स, उनके लिए जो भी सर्विसेज परचेज की, जैसे कि लिफ्ट का रिपेयर मेंटेनेंस, ओके, फिर नल लगा दिए, नल मीन्स टैप्स, ओके, सारे सारे के सारे हाउस होल्ड में टैप्स लगा दिए, ओके, एलपीजी का गैस कनेक्शन करवा के दिया, वॉट एवर इट इज, तो जो भी जीएसटी लगा है उसका क्रेडिट उनको मिलेगा, बट जितना वो एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हैं उतना पार्ट उनको रिवर्सल करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात, ओके, एज पर सेक्शन 17 रेड विथ रूल 42। So here we are completed with the resident welfare association part. So here we are winding up with the third part of exemption. Fourth part में हम लोग last part सीखेंगे, that is miscellaneous exemptions and IGST exemptions. Clear? Thank you very much everyone. Thank you for your valuable time. Bye bye.